Hello students, today we are discussing about the settlement calculation under sanitary landfill. In previous lecture we discussed about what is the sanitary landfill and how it is different from the other type of landfill. In this video we discuss about the settlement calculation of a landfill with time and compression and biodegradation. So there are different approaches and formulas in this lecture we are discussing about. So there is a first settlement calculation under sanitary landfill. In general, landfill या waste dump areas endure from a major post-closure settlement that take place over a prolonged period of time. So we discussed in the previous lecture what is sanitary landfill. It is the area where the waste is dumped for a long period of time. So a huge differential settlement may deteriorate the structure. In previous lecture we discussed that the heavy structure like building there are not constructed over the landfill area because of there is a unpredictable settlement and the characteristics of the waste is different from the soil. So the settlement of the layer of the waste is quite different, quite difficult to understand, and the settlement is quite difficult to understand. So there is a different approaches which is useful determine the settlement of the layers of the wastage or landfill. So the differential settlement deteriorate the structure and foundation and other related facilities that are constructed atop of the landfill, which are constructed upon the landfill. In addition, it may lead to shatter the geomembrane and the wastage of the cover system in the landfill. So the reuse materials show diversified engineering property. We know that the waste different in a waste dumping site there are different type of waste is gathered, and in that some are biodegradable and some are not biodegradable, plastics and organic and inorganic both type of waste is occur at a same time. So their properties also different. So they are diversified engineering properties that diverge over position and time with the landfill. Hence, with conjunction of that landfill, behavior is not fully understood. So the behavior of a landfill is not fully understood. We can understand that, and the recognition a conventional soil mechanic approach less applying to predict the settlement. So the soil mechanic approach we discussed in the previous lectures that how the soil is settled and what are the settlement occur and the different type of soil. So the directly the soil approach is not working over the sanitary landfill area. So there are some empirical and semi-empirical approaches also used for estimating the landfill settlement, and they are commonly used by side with field observation. So some empirical approaches are more used than the soil approaches, soil mechanic approaches. So in this video we discuss both the soil mechanic approaches and the semi-empirical approaches. So let's start with first soil mechanic based approaches. So in this we discuss about the three equation given by the three different experiments and three different person. The number one is the equation by Showers in 1975. The Showers give the equation for settlement on the landfill in 1975. He used that the basic soil mechanics based model of consolidation to estimate the settlement of म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट. सो सॉवर्स ने जो अप्रोच ली है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ओनली कंसोलिडेशन के ऊपर. सो द लॉन्ग टर्म कंप्रेशन एसोसिएट विद द क्रीप एंड बायोडिग्रेडेशन फिनोमिना इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ सेकेंडरी कंप्रेशन. सो द क्रीप एंड द बायोडिग्रेडेशन को उसने किसने लिया है? सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स में लिया है, और उसको सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स को किससे शो किया गया है? सी अल्फा से, इन विच a decrease in the void ratio during the secondary compression is related to the time elapsed between T1 and final time elapsed T2. तो secondary compression index का जो
वाइड रेशियो का जो डिक्रीज़ है वो कौन से T1 टाइम से T2 टाइम के बीच में कितना उसके अंदर डिक्रीज़ आया उसको कंसिडर किया गया है। द मॉडल कैन एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो द इक्वेशन क्या है जो शॉवर्स ने दी है, हियर आर द इक्वेशन विच इज़ गिवन बाय द शॉवर्स। इन दिस यू सी डेल्टा एच का शो कर रहा है सेटलमेंट ड्यू टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन के कितना सेटलमेंट आ रहा है इक्वेशन के अंदर। और एच क्या है, एच है इनिशियल थिकनेस। तो द इक्वेशन इज द क्या एच इंटू सी स्टार लॉग सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट प्लस एच इंटू सी अल्फा लॉग T2 अपॉन T1। तो ये इक्वेशन जो दी थी शोवर्स ने दी थी। डेल्टा एच क्या है जिसको फाइंड आउट करना है वो है सेटलमेंट ड्यू टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। टोटल कितना सेटलमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। एच है थिकनेस ऑफ द लेयर, सी है स्टार है प्राइमरी कंप्रेशन रेशियो। जो ये है वो क्या है प्राइमरी कंप्रेशन रेशियो। सिग्मा नॉट क्या है एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर एक्टिंग एट द मिड लेवल ऑफ द लेयर। वी डिस्कस दैट द सैलिनिटी लैंडफिल इज इन द जो लैंडफिल होता है वो क्या होता है डिफरेंट लेयर्स के अंदर होता है और हर लेयर की थिकनेस क्या अलग अलग होती है। तो सिग्मा नॉट क्या है प्रेशर ओवरबर्डन प्रेशर कितना एक्टिंग एट द मिड लेवल ऑफ द लेयर। अगर हम इस पहली लेयर की बात करें तो इसके जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर कितना ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा है वो है सिग्मा नॉट। डेल्टा सिग्मा क्या है इंक्रीमेंट ऑफ द ओवरबर्डन प्रेशर एक्टिंग एट द मिड लेवल ऑफ द लेयर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल लेयर। तो डेल्टा सिग्मा क्या है जैसे ये फर्स्ट लेयर है इसके मिड पॉइंट पे जितना लोड हो रहा है वो तो होता है सिग्मा नॉट। अगर इस लेयर के ऊपर अगर दूसरी लेयर कंस्ट्रक्ट करेंगे जब ये लेयर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दूसरी लेयर आई तो उसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा है इसी लेयर इसी मिड पॉइंट के ऊपर उसको बताया गया किससे डेल्टा सिग्मा से। तो दो अलग अलग प्रेशर है, पहला तो उसके लेयर का खुद के वेट की वजह से और दूसरा उसके ऊपर आने वाली लेयर की वजह से। सी अल्फ़ा क्या है सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स। T1 है टाइम फॉर कंप्लीटेशन फॉर इनिशियल कंप्रेशन एंड T2 क्या है एंडिंग टाइम पीरियड फॉर विच लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑफ द लेयर इज डिजायर्ड। तो ये सब वैल्यूज़ हैं और द बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑब्जर्वेशन वी टेक ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट द सेटलमेंट। द वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन इंडेक्स CC स्टार is the range of 0.163 to 0.205। तो CC स्टार की वैल्यू किस रेंज में 0.163 से 0.205 तक और CA अल्फ़ा की रेंज क्या है फॉर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट 0.015 टू 0.350। तो ये रेंज है कुछ कंप्रेशन रेशियोज़ की। तो ये थी शोवर की इक्वेशन। नेक्स्ट है बिग्रैंड एंड एडगर की इक्वेशन। तो ये भी एक सॉइल मैकेनिक्स बेस्ड इक्वेशन है। इन दिस इक्वेशन दे सब डिवाइड द सेकेंडरी कंप्रेशन इनटू टू फेज। तो सेकेंडरी कंप्रेशन था उसको क्या इसमें दो अलग अलग फेज के अंदर डिवाइड किया है थ्रू द एडजस्टमेंट ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन एंड इंट्रोड्यूस द इंटरमीडिएट कोफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी इंडेक्स कंप्रेशन C∝1 एंड द फाइनल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंप्रेशन C∝2। इन प्रीवियस equation because of the which is given by the shower only there was C∝ compression index। लेकिन इस इक्वेशन में क्या है दो अलग अलग सेपरेट कंप्रेशन इंडेक्स दिए गए हैं C∝1 एंड C∝2 एंड द स्टेट सेटलमेंट कैन बी मेजर बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन इज गिवन बाय डेल्टा H इज इक्वल्स टू H इंटू CC स्टार लॉग सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट प्लस HC C∝1 लॉग T2 अपॉन T1 और जो एक्स्ट्रा जो आया वो क्या है HC∝2 लॉग T3 अपॉन T2। तो इस इक्वेशन में नया क्या आया है एक C∝1 C∝2 इसके अलावा T3। ठीक है तो C∝1 क्या है इनिशियल सेकेंडरी कंप्रेशन रेशियो, C∝2 क्या है लॉन्ग टर्म या फाइनल कंप्रेशन रेशियो, T2 क्या है टाइम ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेशन, T3 टाइम ऑफ टोटल पीरियड ऑफ कंप्रेशन और T1 तो हम जानते ही क्या है इनिशियल टाइम ऑफ द कंप्रेशन।
जो T1 यहाँ पे था सेम है, टाइम फॉर कंप्लीटेशन ऑफ इनिशियल कंप्रेशन। तो इस तरह से इस इक्वेशन में कुछ नए चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई और इस पिछली इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है। द थर्ड इक्वेशन विच इज़ गिवन बाय हुसैन एंड गैबर फ्रॉम इन 2005, द मॉडल लॉन्ग टर्म सेटलमेंट विद 3 टर्म्स एज गिवन इन द इक्वेशन। तो इसमें कुछ दिया गया, इसमें क्या है, रेशियो है सेटलमेंट अपॉन थिकनेस ऑफ द लेयर का। तो इसको दिखाया गया है एच डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू सी अल्फ़ा आई लॉग T2 अपॉन T1 प्लस सी बीटा लॉग T3 अपॉन T2 प्लस सी अल्फ़ा एफ लॉग T4 अपॉन T3। तो सी नए टर्म्स क्या हैं, सी अल्फ़ा आई। तो सी अल्फ़ा आई क्या है, कंप्रेशन इंडेक्स विच इज़ ए फंक्शन ऑफ स्ट्रेस लेवल एट द एंड डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 0.03 तक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सी बीटा। सी बीटा क्या है, बायोडिग्रेडेशन इंडेक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.019 तक। और सी ए एफ क्या है, क्रीप इंडेक्स। तो ये कुछ 3 इंडेक्स थे। इसके अलावा T1 क्या है, टाइम फॉर कंप्लीटेशन ऑफ इनिशियल कंप्रेशन, और ये लगभग होता है 10 से 15 दिन। T2 क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच कंप्रेशन इज़ टू बी एवेलुएटेड, और इसका टाइमिंग पीरियड होता है 100 to 2000 days. We know that the sanitary landfill is rest for a long period of time. And T3 is the time for completion of the biological compression, or it is usually taken as a 3500 3500 days. And T4 क्या है, टाइम ऑफ द क्रीप एट द एंड ऑफ द टोटल बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। जब कंप्लीट पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, टोटल बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होने में जितना टाइम लगा उसको T4 लेंगे। इस तरह से कुछ वैल्यूज़ थी जो हम जिनकी वैल्यू रख के हम क्या सेटलमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। द मैकेनिकल कंप्रेशन अंडर अप्लाइड स्ट्रेस और द प्रेशर ड्यू टू द सेल्फ वेट वर नॉट इंक्लूडेड। तो इन दिस इक्वेशन जो सेल्फ वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है या जो मैकेनिकल कंप्रेशन की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको नहीं लिया गया। इसकी जगह पे क्या लिया गया है, बायोडिग्रेडेशन अकर एंड द ऑर्गेनिक सॉलिड मेस इज कन्वर्टेड टू द गैस एंड द वॉइस रेशियो इंक्रीज विद ए सबसिक्वेंट इंक्रीज इन द वेस्ट सेटलमेंट। And the model developed was based on the result of experimental program. The degree of decomposition was characterization from the gas generation rate and the cellulose plus hemicellulose to lesion ratio. The time factor T1, T2, T3 and T4 for compressibility were determined from the gas production curve and utilized for the model development. So this is the model is a experimental program method and depend upon a based upon a experimental program. So these are the total 3 equation which is based on the soil mechanic based approach. ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है सेमी इम्पेरिकल मेथड बेस्ड अप्रोचेज। तो सेमी इम्पेरिकल मेथड पे जो अप्रोच करती है, तो फर्स्ट है गिब्सन एंड लॉ की रियोलॉजिकल मॉडल जो कि 1961 में आया था। दे प्रपोज ए मॉडल दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ए पेटी सॉइल एंड द मॉडल इज़ यूज्ड बाय एडिल, रेनगर्ट एंड वुलनर इन 1990। तो इसी मॉडल के ऊपर इन्होंने तीनों ने 1990 में भी एक इक्वेशन दी है टू प्रिडिक्ट द लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। The model was analogy that represent primary compression, secondary compression in which a compression of a spring express immediate and the compression and the combination of the piston and spring express the slow deformation. The model can be expressed as this equation. So here are the equation. In this delta H, we know that delta is the settlement. H naught क्या है, initial thickness of the layer. Delta sigma is the compressive stress depending upon waste height. हाइट कितनी है वेस्ट की, उसकी डेंसिटी कितनी है, उस पर कितना लोडिंग है, उसकी वजह से उससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा डेल्टा सिग्मा की। एंड
अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू क्या है, ए है प्राइमरी कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर और इसकी वैल्यू की रेंज क्या है 1 इंटू 10⁻⁴ टू 8 इंटू 10⁻⁵ किलो पास्कल। तो ये रेंज है किसकी, ए की, इन प्लस डेल्टा सिग्मा इंटू बी। अब बी क्या है, बी है सेकेंडरी कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर और इसकी रेंज है 2 इंटू 10⁻³ से 1.62 इंटू 10⁻² किलो पास्कल। तो ये है ए और बी। इसके अलावा और क्या है इस इक्वेशन में, 1 माइनस ई की पावर माइनस डेल्टा अपॉन बी, ठीक है। तो डेल्टा अपॉन बी क्या है, डेल्टा अपॉन बी है रेट ऑफ सेकेंडरी कंप्रेशन और रेट ऑफ सेकेंडरी कंप्रेशन को किससे शो करते हैं, डेल्टा अपॉन बी से, और इसकी रेंज है 1.4 इंटू 10⁻⁴ से 9 इंटू 10⁻⁴ पर डे, ओके। एंड ई इज़ द एप्सिलॉन मैथमेटिकल फंक्शन एंड टी इज इक्वल्स टू टाइम सिंस लोड एप्लीकेशन, और टी क्या है, टाइम सिंस लोड एप्लीकेशन। तो ये सब वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यूज़ को रख के हम क्या निकाल सकते हैं, सेटलमेंट इन द sanitary landfill. The second semi-empirical relation are given by the Yan and Scallan in 1975, which is a logarithmic function. The logarithmic function is expressed as the equation of delta H is equal to HF into alpha plus beta log T minus TC upon 2. This is a simple equation, we know that. एच एफ क्या है, इनिशियल हाइट ऑफ द लैंडफिल, अल्फ़ा क्या है, फिटिंग पैरामीटर है जिसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से। एच एफ की वैल्यू हम पुट करके हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा है फिटिंग पैरामीटर है और इसका फार्मूला है ये, यहाँ पे भी हम एच एफ की वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और टी क्या है, टी है टाइम सिंस बिगिनिंग ऑफ फिलिंग, जब से फिलिंग स्टार्ट करी हमने लैंड फिलिंग की तब से कितना टाइमिंग हो रहा है। तो ठीक है, टाइमिंग सिंस बिगिनिंग ऑफ द फिलिंग, तो टोटल फिलिंग करने में कितना टाइम लगा। और टी सी क्या है, कंस्ट्रक्शन पीरियड, कि उसको कंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लगा लैंड फिल को। तो इन सब वैल्यूज़ को पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ द लैंड फिल लेयर। एंड द थर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय एडल, रेनगेट एंड वुलनर इन 1990। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ी थी गिब्सन और लॉ की, इसी का वापस यूज़ करके इन्होंने 1990 में एक दूसरी इक्वेशन दी। तो वो दूसरी इक्वेशन क्या है वो हम पढ़ते हैं। सो द पावर क्रीप मॉडल इज सिंपल रिलेशन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस एंड एक्सप्रेस एज द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इन्होंने जो इक्वेशन दी है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे, और जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो कितना है, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। और इसको इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से बताया गया है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच नॉट डेल्टा सिग्मा एम नॉट इंटू टी अपॉन टी आर की पावर एन नॉट। तो ये इक्वेशन दी है एडल, रेनगेट एंड वुलनर ने। तो इसके अंदर एम डैश क्या है, इसी से एम डैश क्या है, रिफरेंस कंप्रेसिबिलिटी जिसकी रेंज है 1.6 इंटू 10⁻⁵ से 5.8 इंटू 10⁻⁵ किलो पास्कल इसकी रेंज होती है। एन डैश क्या है, रेट ऑफ कंप्रेशन, एन डैश ये रहा रेट ऑफ कंप्रेशन, इसकी वैल्यूज़ लगभग कितनी होती है 0.50 से 0.67 तक। एंड द टी इज इक्वल्स टू टाइम सिंस द लोड एप्लीकेशन, जब से लोड लगना स्टार्ट हुआ है। एंड टी आर क्या है, रेफरेंस टाइम and is typically introduced to make time dimensionless। और इसकी वैल्यू हम टी आर की वैल्यू हम एक्सपेक्टेड कितनी लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, यूजुअली टेकन एज 1। द पैरामीटर एम डैश इज द साइट स्पेसिफिक एंड द एन डैश इज द रेट ऑफ द कंप्रेशन विच वेरीज विद रिस्पेक्ट टू एज एंड प्लेसमेंट कंडीशन ऑफ द वेस्ट। तो एम डैश और एन डैश की वैल्यू क्या है, कितना टाइम से सैनिटरी लैंडफिल हो रहा है, उसकी एज क्या है और कंडीशन क्या है वेस्ट की, वेस्ट के किस टाइप का वेस्ट है, उसके हिसाब से एम डैश और एन डैश की वैल्यू वेरी करती है। हाउ एवर द वेरिएबिलिटी ऑफ द एन डैश इज़ लेस देन द एम डैश। तो एन डैश के अंदर जो वैल्यूज़ है वो कम वेरी करती है एज़ कम्पेयर टू द एम डैश। तो ये सब वैल्यूज़ को पुट करके हम इससे हम सेटलमेंट इन द
सैनिटरी लैंडफिल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ 3 इक्वेशन हमने सॉइल मैकेनिक बेस्ड इक्वेशन एंड द 3 इक्वेशन इज द एम्पेरिकल मेथड बेस्ड इक्वेशन हमने डिस्कस करी टू फाइंड आउट द सेटलमेंट इन द सैनिटरी लैंडफिल।